हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बाय और हैविंग दो क्लॉजेस के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप बाय क्लॉज। नाउ ग्रुप बाय क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम किसी चीज़ को भी ग्रुप करते हैं, ग्रुप का मतलब हो गया कि अलग अलग चीज़ के बेसिस पे हम लोग कोई भी हमारा डाटा है उस डाटा को एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि उसके एट्रीब्यूट या फिर उसके कॉलम के बेसिस पे उसको अगर ग्रुप करते हैं देन दैट इज समथिंग नोन एज अ ग्रुपिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। इसके लिए तीन हमारे पास अभी टेबल्स हैं, मैं आपको शो करूंगा और उन तीन टेबल्स के थ्रू हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप बाय। ना ग्रुप बाय इस तरीके से आपका काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री टेबल में जितने भी हमारे कॉलम्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स और कॉलम्स हमें शो कर रहा है। नाउ व्हाट if you want to group the records according to the fuel type. So if you want the records to be grouped according to the fuel type, in that case if you come here to the fuel type, there are two types of fuels first. So first is the petrol fuel. So you can see here these are the records which contains the petrol fuel. Okay, these are the records which contain the petrol fuel. So that means out of the total 8 records we have 4 plus 2 6 records जो आपके petrol fuel type हैं। So वो क्या करेगा, it will actually create two groups, one containing all the petrol, that means ये दो रिकॉर्ड भी उसमें ऐड हो जाएंगे। So यहाँ पे ये जो आपका एक ये 4 ऊपर के 4 और नीचे के दो रिकॉर्ड्स उनका एक ग्रुप अलग से क्रिएट कर लेगा when we say group by fuel type. So when you say group by and then you specify the name of the column, then in that case what it does is it actually starts creating different groups according to the different kind of values or we can say the distinct values in that fuel type. तो यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल टाइप का एक ग्रुप बन गया और उसके बाद CNG आपका जो फ्यूल है उसके लिए वो दूसरा ग्रुप क्रिएट कर लेगा which contain these two records. So that means it will actually create two groups, one for petrol and one for CNG if I say group by fuel type. Let's take another example. If I come down and let's see the employee table. Now if we see the employee table here, if you can see the designation. Now in the designation we have 4 different kinds of the designation. You can see the salesman as a designation. So if I say group by designation, so once I say group by designation, it will create group of these two records plus this particular record plus these two records. तो that means ये 5 रिकॉर्ड का अलग से ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, that will be the single group. Next if ये एक ग्रुप हुआ इसमें भी, next it will find peon as the another value. So जब उसको peon as an another value मिलेगा, so it groups another, it actually creates another group of peon. तो पियोन के ग्रुप में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, सॉरी 2 रिकॉर्ड है, नीचे वाला भी है, सो इट कंटेन्स दोज 2 रिकॉर्ड्स. सो सेल्समैन का एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स हैं, दे आर टोटल 9 रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल. तो इन दैट केस इफ वी से ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, इट विल क्रिएट व्हाट इट विल क्रिएट, इट विल क्रिएट 4 डिफरेंट ग्रुप्स, one for the salesman, second for the peon and the third for the receptionist. So receptionist के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे receptionist के लिए you can see this particular record. So you can see this particular record, receptionist. Then if we come on to the next group, that is your manager. So manager के लिए अलग group create कर लेगा. So that means now it will create five different groups. First, so not 5, the first 4 different groups. First salesman वाला ग्रुप हो जाएगा, second peon वाला ग्रुप हो जाएगा, थर्ड रिसेप्शनिस्ट वाला ग्रुप हो जाएगा, फोर्थ मैनेजर वाला ग्रुप हो जाएगा. अब ये 4 ग्रुप जब अलग अलग क्रिएट हो गए तो वो उसके बाद वो क्या करेगा, दैट विल सी लेटर. बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप बाय. सो ग्रुप बाय, उसके बाद कॉलम नेम जब भी स्पेसिफाई करते हो सेलेक्ट क्वेरी में, देन इट इन दैट केस इट क्रिएट्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन दैट कॉलम. तो वो ग्रुप आप सोच सकते हो कि 4 अलग ग्रुप हो गए और उसके बाद वो आगे फर्दर वर्क करता है. सो लेट्स मूव फर्दर.
with the third kind of the table, that is monthly sale. Again group by की बात जब हम करते हैं यहाँ पे, तो group by में if I say group by zone, if I say group by zone, it will create two different groups, one for the north zone and another for the south zone. तो जब हम नॉर्थ जोन की बात करते हैं तो यहां पे वो इन रिकॉर्ड्स का, ये इन रिकॉर्ड्स का फर्स्ट 6 रिकॉर्ड्स का एक ग्रुप बना लेगा और उसके बाद लास्ट 6 रिकॉर्ड जिसके अंदर जोन हमारा साउथ है उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेगा. बट इफ आई वुड हैव सेड, अभी हमने जो ग्रुप बाय किया वो हमने ग्रुप बाय जोन किया था, तो ग्रुप बाय जोन करेंगे तो 2 ग्रुप्स क्रिएट होंगे, नॉर्थ के लिए अलग और साउथ के लिए अलग. नाउ व्हाट इफ आई से ग्रुप बाय मंथ? नाउ इफ आई से ग्रुप बाय मंथ, इन दैट केस इट विल क्रिएट 6 डिफरेंट ग्रुप्स. बिकॉज मंथ की बात करते हैं तो यहां पे मंथ की जब बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले वो जो ग्रुप लेगा, सो दैट विल बी योर, ये दिस जनवरी का एक ग्रुप ले लिया उसने. सिमिलरली वी हैव अ जनवरी वैल्यू हियर ऑल्सो, सो ये एक ग्रुप क्रिएट कर लेगा इन 2 मंथ्स को लेके. सो इफ आई से ग्रुप बाय मंथ, इट विल क्रिएट 6 डिफरेंट ग्रुप्स, one for the January, second for the February, you can see here, ये second for the February, here we have the February, so ये second आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा. Then after that third for the March, so ये मार्च के लिए ग्रुप क्रिएट कर लेगा, मार्च के लिए ग्रुप क्रिएट कर लेगा. Then fourth for the, let's take a different color, so then fourth for the April, सो अप्रैल के लिए एक ग्रुप क्रिएट कर लेगा. देन आफ्टर दैट इट विल क्रिएट अ ग्रुप फॉर द मे, सो मे के लिए ग्रुप क्रिएट कर लेगा क्योंकि मे वैल्यू जो कॉमन वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे वो अलग ग्रुप क्रिएट कर लेगा. एंड देन फाइनली वी हैव द जून ग्रुप, सो ये जून के लिए अलग ग्रुप क्रिएट कर लेगा. सो दैट मीन्स इट विल क्रिएट 6 डिफरेंट ग्रुप्स अगर हम बोलते हैं ग्रुप बाय मंथ. तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ग्रुप्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कौन से कॉलम के बेसिस पे हो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, लेट्स स्टार्ट दैट. सो टू बिगिन विद दैट वी विल ट्राई टू यूज दिस जोन, दिस मंथली सेल टेबल ओनली. ठीक है, हम इसी मंथली सेल टेबल को यूज करते हैं. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज दैट एम्प्लॉय और इवन दैट इन्वेंट्री टेबल. सो मंथली सेल वाला यूज करते हैं. आपको सामने टेबल नजर आ ही रहा है. ठीक है, आई जस्ट अगेन शो द कमांड हियर. या so this is my table which has sale ID, zone, month and sale. Now let's say I want to find out the maximum sale of each zone. हर zone का मुझे maximum sale find out करना है. Then in that case what I will be doing is, normally when we find out maximum sale, so I would have written select max sale from the table name, that is monthly sale. but इस केस में वो सिर्फ एक ही आउटपुट देगा और वो देगा आपका 500 जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. लेकिन हमें जोन वाइज चाहिए कि नॉर्थ का मैक्सिमम सेल कितना और साउथ का कितना चाहिए. तो जब आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, टोटल या फिर काउंट करने हैं रिकॉर्ड्स को, देन यू यूज अ ग्रुप बाय. तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, so if you have to find out the maximum sale from this particular table for each zone, so you will have to write here group by and then after that just write zone. So जो आपने लिखा select max sale from monthly sale group by zone, तो वो पहले जोन पे आएगा. जोन पे देखेगा कौन सी अलग अलग वैल्यूज हैं, एक तो नॉर्थ अलग वैल्यू है, एक साउथ अलग वैल्यू है. इन 2 का अलग ग्रुप बना लेगा, नॉर्थ का अलग बना लेगा और साउथ के लिए अलग ग्रुप बना लेगा. दोनों का ग्रुप बनाने के बाद नॉर्थ का देखेगा मैक्सिमम सेल क्या है. तो यू कैन सी हियर द मैक्सिमम सेल इन नॉर्थ इज 500, सो इट विल डिस्प्ले 500. देन इन द इट विल गो टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड फाइंड फॉर द अगेन द मैक्सिमम सेल. सो इन द साउथ द मैक्सिमम सेल इज 300, सो इट विल डिस्प्ले 500 एज वेल एज 300. बट यहाँ पे एक इशू आएगा, वो जब कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा. सो इफ आई जस्ट प्रेस एंटर इट विल डिस्प्ले 500 एंड 300. लेकिन हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कौन से जोन का 500 है, कौन से जोन का 300 है. तो इन दैट केस इफ यू ऑल्सो वांट टू व्यू द नेम ऑफ द जोन,
then what you can do is you have to enclose the same, जो भी आपने ग्रुप बाय लगाया है वो मैक्स से पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा. So you will have to mention here, you have to write select के बाद you have to write zone comma max sale from monthly sale group by zone. तो जो आपने ग्रुप बाय के बाद आपने कॉलम यूज किया है, you have to use the same here also. तो ये चीज आप ध्यान रखना, अदरवाइज आउटपुट तो आएगा बट यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से ग्रुप का कौन सा आउटपुट है. सो यहां पे जब हम लोगों ने जोन लिख दिया, इन नाउ व्हाट इट विल डू इज इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप and then there will be two groups, then it will display the zone name and then also the maximum sale in that zone. So now if we come to the end and press enter, so now you can see, now it clearly specifies कि north का sale 500 है maximum और south का 300 है. So this is the usage of a group buy. So what a group buy does is, first of all it goes to a particular column, makes different groups of different values according to the different kind of values in that column. उस कॉलम के अंदर जितनी अलग अलग वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे वो अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट करेगा. और ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद, क्योंकि ग्रुप बाय हम तभी यूज करते हैं व्हेन यू यूज दिस ग्रुपिंग फंक्शन. अगर आप ग्रुपिंग फंक्शन यूज नहीं कर रहे हो, मैक्स नहीं यूज कर रहे, मिन यूज नहीं कर रहे, सम यूज नहीं कर रहे, ना एवीजी यूज कर रहे हो, ना काउंट, तो ये 5 ग्रुपिंग फंक्शंस या मल्टीपल रो फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शन आप अगर इस यूज नहीं करते हो, देन यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ ग्रुप बाय. तो ग्रुप बाय ओनली वर्क्स विद दीज ग्रुपिंग फंक्शंस. सो अगर आप इनको यूज कर रहे हो अपने सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में, ओनली देन यू कैन यूज अ ग्रुप बाय. अदरवाइज हर चीज के लिए आप ग्रुप बाय यूज नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ यू आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ यू कैन यूज अ ग्रुप बाय क्लॉज. और फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखना है, उसके बाद अगर आपकी कंडीशन है कोई तो वेयर आप लगा सकते हो, उसके बाद ग्रुप बाय, दैट मीन्स ग्रुप बाय लास्ट क्लॉज आपका आता है. सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप बाय टू मेक इट क्लियर टू यू. ओके, लेट्स सी दी employee table. So let's say we have this employee table. So select start from employee. ये हमारे पास रिकॉर्ड है. यहाँ पे I want to group according to designation and I want to count the total number of employees as per the designation. मैं काउंट करना चाहता हूँ कि हर डेजिग्नेशन, जैसे सेल्समैन कितने हमारे पास हैं, पियोन कितने हैं, रिसेप्शनिस्ट कितने हैं, मैनेजर कितने हैं. सो आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन वाइज. सो इन दैट केस आई विल बी राइटिंग सेलेक्ट, देन बिकॉज आई विल बी ग्रुपिंग एज पर द डेजिग्नेशन, तो जिसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुपिंग करनी है, राइट द नेम ऑफ दैट कॉलम, देन आफ्टर दैट डू वट एवर यू वांट. सो इफ यू वांट टू काउंट, जस्ट राइट काउंट, एंड मेरे को रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं, जस्ट स्पेसिफाई एस्टेरिस्क साइन. Then write the name of the table after from, that's compulsory, mandatory है part ये. Then after that write group by, और group by के बाद जिसके accordingly आप grouping कर रहे हो. So you are grouping according to designation, so just write designation. So now what it will do is, first it will create 4 different groups, one for the salesman, next for the peon, then third for the receptionist and next for the manager. तो ये 4 ग्रुप बना लेगा, अलग अलग कर लेगा और उसमें से फिर गिनेगा कितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब सेल्समैन के कितने रिकॉर्ड्स हैं. बिकॉज काउंट स्टार क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, यू विल बी एबल टू सी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डेजिग्नेशन. सो इफ आई नाउ प्रेस एंटर, you can see here we have only one manager, we have 2 peons, we have 1 receptionist and we have 5 salesmen. So this is how you can get the number of employees as per the designation. So you can see the usage of a group by clause. I hope you might have understood it. Now let's move on to the next part here, that is having clause. Now having clause is used to specify a condition, or you can say a filter on any column, or it can also be used to put a filter or a condition on the grouping function. That is, आपने जो function यहाँ पे use किया है, जैसे आपने यहाँ पे count star use किया है, तो यहाँ इस count star के ऊपर condition अगर लगानी है, that means count star क्या return कर रहा है, it is returning 1, 2, 1 and 5. So it is returning actually 4 values.
लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे डेजिग्नेशन हैं जिनमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन यूज़ अ हैविंग क्लॉज हियर. सो हैविंग क्लॉज यूज़ करने के लिए मैं भी एंटर प्रेस करूँगा. ठीक है, आई एम नॉट एंडिंग माई कमांड बट हैविंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो हैविंग, आपको अगर ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हो तो हैविंग शुड बी द लास्ट क्लॉज. आपका हैविंग जो क्लॉज होगा वो सबसे आखिरी में आपको लिखना है. तो आप लिखोगे हैविंग, और हैविंग के बाद आप कोई भी कॉलम पे कंडीशन लगा सकते हो, या आपने जो ग्रुपिंग फंक्शन अपने सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में यूज़ किया है आप उसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हो. तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा काउंट स्टार, सो बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग 4 डिफरेंट वैल्यूज़, बट आई वॉन्ट टू नो कि 1 से ज़्यादा कौन कौन सी है. सो दैट मीन्स जो मेरा आउटपुट आएगा उस आउटपुट पे मैं पहले से ही कंडीशन लगा रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू नो कि कौन कौन से ऐसे डेजिग्नेशन है. पहले तो हमने ये बोला कि भाई डिफरेंट डेजिग्नेशन के बेसिस पे काउंट करो रिकॉर्ड्स, मतलब एम्प्लॉय काउंट करो, और रिकॉर्ड काउंट करने के बाद ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं या डेजिग्नेशन आए हैं जिनका आउटपुट 1 से ज़्यादा है. सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर इट विल ओनली डिस्प्ले दिस पियोन एंड सेल्समैन. जो हमारे पास जिसमें 1 आउटपुट आ रहा था वो शो नहीं किया. द रीज़न बीइंग यू क्लियरली कैन आइडेंटिफाई दैट. द रीज़न बीइंग आई हैव स्पेसिफाइड काउंट स्टार इज मोर देन 1. तो काउंट स्टार में यहाँ पे क्या ये 1 से ज़्यादा है? नो, दिस इज इक्वल टू 1, नॉट मोर देन 1. तो इन दोनों रिकॉर्ड्स को इसलिए इसने डिस्प्ले नहीं किया. इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं किया और ना ही दूसरे वाले रिकॉर्ड को इसने डिस्प्ले किया, रिसेप्शनिस्ट वाले को. क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 आउटपुट आ रहा था. हैविंग बिल्कुल वेयर की तरह ही काम करता है, लेकिन वेयर के अंदर आप जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं उन पे कंडीशन नहीं लगा सकते हो. ये मेजर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? वेयर में यू कैन ओनली स्पेसिफाई अ कंडीशन ऑन द कॉलम. जो आपके टेबल में कॉलम्स हैं उन पे कंडीशन लगा सकते हो. आपको दोबारा से इस चीज़ को समझा देता हूं मैं, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हैविंग एंड द वेयर क्लॉज. सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू द एम्प्लॉय टेबल, now what are the different columns that you can see? So these are the different columns, the emp id. So these are the different columns, emp id, emp name. अगर इनके ऊपर किसी भी कॉलम पे कंडीशन लगानी है तो आप where लगा सकते हो. हैविंग के थ्रू भी आप कंडीशन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है. लेकिन जैसे मैक्स, क्योंकि मैक्स तो यहाँ कॉलम है ही नहीं, मिन वो भी कॉलम यहाँ पे नहीं है, सम वो भी कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एवीजी दैट इज़ नॉट देयर, और काउंट ये हमारे फंक्शंस हैं. तो उन ग्रुपिंग फंक्शन के ऊपर अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आपको हैविंग यूज़ करना ही पड़ेगा. तो आप वेयर यूज़ नहीं कर सकते हो. लेट्स ट्राई टू सी द यूसेज ऑफ हैविंग बाय पुटिंग अ कंडीशन ऑन द कॉलम्स. तो आप किसी कॉलम पे कंडीशन कैसे लगा सकते हो हैविंग को यूज़ करके? तो आप कैसे लगा सकते हैं? लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो जैसे हम लोगों ने पीछा कमांड लिखा था, आई जस्ट गेट बैक दैट कमांड. So we have written something like select designation. Okay, select designation comma count star from employee group by designation. Since you have to use a where here, so that is where salary more than 30,000 after, and if I come to the end to put a semicolon, okay, now you can see salesman 3. तो आप ग्रुप हैविंग के अंदर उन्हीं चीज़ पे कंडीशन लगा सकते हो जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में यूज़ किया है. सो यू कैन पुट अ कंडीशन ईदर ऑन डेजिग्नेशन और काउंट स्टार. सो आई कुड हैव स्पेसिफाइड समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, या सेलेक्ट डेजिग्नेशन कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, हैविंग डेजिग्नेशन, you can say that designation, and then you can put something like in मुझे सेल्समैन का देखना है और मुझे मैनेजर का देखना है या फिर पियोन का देखना है. सो यू कैन पुट कंडीशन ऑन ईदर डेजिग्नेशन और काउंट स्टार विद द हैविंग, बट वेयर आप किसी के साथ भी लगा सकते हो. तो वेयर अगर आप लगा रहे हो तो ग्रुप बाय से पहले लगेगा, हैविंग लगा रहे हो तो ग्रुप बाय के बाद लगेगा हैविंग. सो नाउ यू कैन सी सिर्फ उसने सेल्समैन और पियोन दोनों के लिए. तो हैविंग क्या काम करता है कि जो आपका आउटपुट रिटर्न होता है ना उसके ऊपर कंडीशंस लगा देता है. सो आउटपुट रिटर्न हो गया मतलब ग्रुपिंग कर ली उसने, आउटपुट जनरेट कर लिया, उसके बाद वो डिस्प्ले करते टाइम फिल्टरिंग करता है. बट वेयर जो है
डिस्प्ले करने से पहले, आपका मतलब रिकॉर्ड्स को फेच करने से पहले ही उनको फिल्टर कर लेता है रिकॉर्ड्स को। और यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, आउटपुट जनरेट हो जाता है, उसके बाद वो फिल्टर करता है। So this is a major difference between where and having. So having can be used to put a condition either on your column or on your any of the aggregate function या grouping function बोल सकते हैं, या multiple row functions बोल सकते हैं। So I hope you might have learned about the group by and having, and that's all for this video. Thanks for watching. Thank you.